Hello, friends. Forget everything you've been told because the real movie has just begun. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਖੋਜ ਪੱਤਰ, ਲੇਖ, ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਢਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਿਆ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 80 ਸਾਲ ਚੱਲੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਲੰਬੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੌਹਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਵੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਰ ਖੋਜ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਾਰਵਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ AARP ਹੈ ਤੇ ਟਾਕ ਸਪੇਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੀਆਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਂਗ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹਾਰਵਰਡ ਚੈਨ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਾਸ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਮਤਲਬ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦਾ। ਇਕੱਲਤਾ ਇੱਕ ਲੋੜ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਰੂਟੀਨ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੇਲੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੋਜਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ PMC ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਸੇ ਖੋਜ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 62, 65, 67 ਸਾਲ, ਉਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਘਟ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦੌਰ 'ਚ ਮਕਸਦ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇ, ਹੁਨਰ ਵਗੈਰਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਲੇ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੈਨ ਸਰਚ ਫॉर ਮੀਨਿੰਗ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਐਪਸ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਡਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਈਫ ਕੋਚ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਮਕਸਦ। ਪਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਪਰ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੱਸਣਾ। AARP ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 30 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ। ਓ ਵਾਹ, 30 ਗੁਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਰਵਰਡ ਚੈਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮਰ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋ ਸੋਸ਼ਲ ਵਿਵਹਾਰ, ਮਤਲਬ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ?
ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਏਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ, ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਗੋਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਆਸਾਨ ਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ। ਛੋਟੇ ਕਦਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੀ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢੀਏ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 50 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਕਸਰਤ ਜਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਸੰਭਾਲ, ਮਤਲਬ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਵਰਡ ਵਾਲੀ ਸਟੱਡੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਲੰਬੀ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ, ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो आज हम 50 साल की उम्र के बाद जिंदगी को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर बात कर रहे हैं। जी, और हमारे पास काफी मवाद है इस पर। AARP, हेल्थलाइन, हार्वर्ड की वो मशहूर स्टडी भी है। हाँ, और द सेकंड असेंट रिपोर्ट, रज़ाकाराना खिदमात पर तहकीक, हेल्प एज गाइड, काफी कुछ है। मकसद यही है कि इन सब से जो अहम बातें हैं वो सामने लाई जाएं, अमली मशवरे मिल सके। बिल्कुल। तो शुरू कहाँ से करें? कोई हैरानकुन बात? एक बहुत दिलचस्प चीज है जिसे कहते हैं खुशी का यू शेप रुझान। अच्छा, ये क्या है? जी, तहकीकें बताती है, जैसे द सेकंड असेंट रिपोर्ट में है, कि 40-50 साल की उम्र में इत्मीनान अक्सर कम होता है। हाँ, मिड लाइफ क्राइसिस वाली बात। कुछ ऐसा ही, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसके बाद खुशी का एहसास वापस बढ़ना शुरू होता है। वापस बढ़ता है? हाँ जी। मतलब उम्र बढ़ने से खुशी कम नहीं होती? जी नहीं, बल्कि बढ़ता है और अक्सर 80 साल की उम्र तक ऊंचा रहता है। कमाल है। इसकी वजह ज़राए क्या कहते हैं? वजह असल में तरजीहात में तब्दीली है। लोग वो स्टेटस, कामयाबी, इन चीजों से हटकर अच्छा, ज्यादा तवज्जो गहरे ताल्लुकात पर देते हैं। खानदान, दोस्त, अपनी कम्युनिटी। यानी ताल्लुकात ज्यादा अहम हो जाते हैं। और वो हार्वर्ड वाली स्टडी, वो तो तकरीबन 80 साल चली है। बिल्कुल, और उसका निचोड़ यही है कि अच्छी, लंबी और खुशगवार जिंदगी के लिए ना अच्छे करीबी ताल्लुकात सबसे अहम है। पैसे, शोहरत, इन सबसे ज्यादा? जी हाँ, दौलत, शोहरत, समाजी रुतबा, IQ, हत्ता के जीन से भी ज्यादा अहम। ये ताल्लुकात आपको जिंदगी के मुश्किल वक्तों में सहारा देते हैं और ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर भी असर डालते हैं। बिल्कुल, ये ज़हनी और जिस्मानी जवाल को सुस्त करते हैं। तो अपने रिश्तों का ख्याल रखना, वो एक तरह से अपना ख्याल रखना ही है। सही कहा। और अगर ताल्लुकात ना हो, मतलब तन्हाई हो, तो तहकीक तो कहती है कि तन्हाई इतनी ही खतरनाक है जितनी सिगरेट नोशी या बहुत ज्यादा शराब पीना। ओ, ये तो संजीदा बात है। अच्छा, जिस्मानी सेहत की तरफ आए। 50 के बाद सिर्फ सुबह की सैर काफी है? नहीं, वो काफी नहीं है, खास तौर पर पट्ठों और हड्डियों के लिए। जराए जैसे द सेकंड असेंट मुज़ाहमती तरबियत पर बहुत जोर देते हैं। मुज़ाहमती तरबियत यानी वजन उठाना, पिलाटेस या वो जो रेजिस्टेंस बैंड्स होते हैं ना, उनका इस्तेमाल पट्टों की मजबूती और हड्डियों की कसाफत बरकरार रखने के लिए ये जरूरी है। और खाने पीने में क्या तब्दीली लानी चाहिए? हाँ, ग़िज़ाइयत भी बदलती है। कैल्शियम और विटामिन D ज्यादा अहम हो जाते हैं हड्डियों के लिए। और तवानाई के लिए? उसके लिए B विटामिन और प्रोटीन। और कोशिश करें कि ऐसी चीजें खाएं जो जिस्म में सोजिश कम करें, फल, सब्जियां, मछली। और प्रोसेस्ड फूड से परहेज? जी बिल्कुल। और एक और अहम बात, उम्र के साथ प्यास कम महसूस होती है। अच्छा जी, तो याद से पानी पीते रहना बहुत जरूरी है, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। ठीक है, अब आते हैं जहनी और जज्बाती सेहत पर। तनाव तो आजकल हर एक को है, इसके लिए क्या मशवरे हैं? इसके लिए छोटे छोटे कदम बहुत कारआमद हैं। AARP और द सेकंड असेंट में एक चीज का जिक्र है, माइक्रो एक्ट्स ऑफ जॉय। माइक्रो एक्ट्स ऑफ जॉय
यानी खुशी के छोटे लम्हे। बिल्कुल, जैसे किसी दोस्त से कोई अच्छी खबर शेयर कर ली या बस 2 मिनट बैठकर उन चीजों की लिस्ट बना ली जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। और इससे फर्क पड़ता है। जी, तहकीक कहती है रोजाना सिर्फ 5 से 10 मिनट ऐसा करने से जज्बाती तौर पर आप 17% बेहतर महसूस कर सकते हैं। सिर्फ 5-10 मिनट में 17%, ये तो जबरदस्त है। और मुस्बत सोच, ऑप्टिमिज्म, क्या वो सीखी जा सकती है? हाँ, जरा यही कहते हैं कि ये एक सीखी जाने वाली महारत है। मनफी चीजों को अलग जाविये से देखना, मुस्बत लोगों के साथ रहना। और वो जो रिलैक्सेशन की टेक्निक होती हैं। जी, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन या PMR जैसी टेक्निक है। ये तनाव कम करने और नींद बेहतर करने में काफी मददगार हैं। अब दोबारा सामाजिक ताल्लुकात पर आते हैं। ARP और हेल्थलाइन कहते हैं दोस्त सेहत का अमृत हैं। 50 के बाद दोस्त बनाना या रिश्ते निभाना मुश्किल नहीं हो जाता? हो जाता है। इसीलिए ये एक शऊरी कोशिश मांगता है। आपको वक्त निकालना पड़ता है। रोजाना फोन पर बात कर ली या मिलने का प्रोग्राम बना लिया, ये बहुत जरूरी है। और रजाकाराना खिदमत, क्या वो भी मदद करती हैं? बहुत ज्यादा। वॉलंटियरिंग सिर्फ कम्युनिटी के लिए अच्छा नहीं है, ये आपकी अपनी सेहत बेहतर करता है, डिप्रेशन का खतरा कम करता है। और समाजी रवाबित भी बढ़ते होंगे। जी बिल्कुल। और एक और बात, रिटायरमेंट के बाद अक्सर लोग अपनी शनाख्त का बुहरान महसूस करते हैं। रजाकाराना खिदमत इसमें भी मदद करती हैं। एक मकसद मिल जाता है। सही। आखिर में कुछ अमली सेहत के मशवरे हेल्प एज गाइड से शायद। जी, 2-3 चीजें बहुत अहम है। एक तो वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन? हाँ, उम्र बढ़ने के साथ कुछ बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। कोविड-19, फ्लू, निमोनिया और शिंगल्स, इन सब की वैक्सीन दस्तयाब हैं और लगवानी चाहिए। शिंगल्स वो क्या है? ये एक वायरल बीमारी है जो काफी तकलीफदा हो सकती है। इसकी वैक्सीन भी आती है। अच्छा, और दूसरी चीज? घर में गिरने से बचाओ। ये बहुत आम मसला है। इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है? छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे अगर कालीन है तो उन्हें हटा दें या टेप से चिपका दें। घर में रोशनी मुनासिब हो, बाथरूम में ग्रैब बार्स लगवाएं। ठीक है, तो अगर हम सारी बात समेटें, 50 के बाद एक अच्छी भरपूर जिंदगी के लिए जिस्मानी सेहत, गहरे रिश्ते, जहनी सुकून, कोई बामकसद मसरूफियत और अमली एहतियात, ये सब जरूरी है। बिल्कुल। और सबसे अहम बात जो तहकीक बार बार बताती है वो ये कि हमारी खुशी का तकरीबन 40% हमारे अपने हाथ में है, हमारे फैसलों और आदतों पर मुनहसर है। ये तो बहुत उम्मीद अफ़ज़ा बात है। तो सुनने वालों के लिए आज का सवाल यही छोड़ते हैं कि वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो आज वो अपनी सेहत, अपने रिश्तों या अपने जिंदगी के मकसद के लिए उठा सकते हैं। एक छोटा कदम जो आने वाले सालों में बड़ा फर्क ला सकता है। 50 के बाद जिंदगी की असली उड़ान। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपकी दोस्त और आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो आपकी सोच बदल देगा। हम बात करेंगे 50 के बाद की जिंदगी को एक नए नजरिए से जीने की। Forget everything you've been told। भूल जाइए वो सब पुरानी बातें, क्योंकि असली पिक्चर तो अभी शुरू हुई है मेरे दोस्त। एक आयु का पड़ाव या एक नया आगाज। 50 साल, ये सिर्फ एक पड़ाव नहीं बल्कि एक नया आगाज है। ये वो समय है जब जिंदगी की असली उड़ान शुरू होती है। एक ऐसी शुरुआत जहां हर पल में एक नई कहानी है, हर सुबह एक नया अवसर है। साइंस कहती है और अब तो सारी दुनिया मानती है कि इंसान की खुशी का ग्राफ यू शेप का होता है। जवानी में हम खुश रहते हैं, फिर 40-50 की उम्र में थोड़ा नीचे जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो उछाल आता है ना, वो कमाल का होता है। ये दूसरी पारी है, द सेकेंड इनिंग्स, और इससे पहले से भी बेहतर कैसे बनाना है, आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। 1. जिस्म है तो जहान है। अपने शरीर का ख्याल रखें। अपनी बॉडी को एक मंदिर समझो। इस उम्र में सेहत ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। हिले डुले, थोड़ा सा योगा, हल्की फुल्की सैर या फिर जुम्बा दी बीटते थोड़ा थुमका, ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको अंदर से जिंदा रखते हैं। सही आहार, खाने में पौष्टिक आहार जैसे हरी सब्जियां, दालें और फल या आपके जिस्म के लिए अमृत है। याद रखो, अ गुड डाइट इज अ बैंक अकाउंट, गुड फूड चॉइसेस अ गुड इन्वेस्टमेंट। 2. दिल और दिमाग, रिश्ते और शौक को जिंदा रखें। अक्सर इस उम्र में अकेलेपन का एहसास, एक खालीपन सा महसूस होता है। बच्चे अपनी जिंदगी में बिजी, काम से रिटायरमेंट, लेकिन ये वक्त है अपने शौक पूरे करने का।
नया सीखें, कोई नई जबान सीखकर दुनिया को एक नई नजर से देखें, कैनवस पर अपने मन के रंग उतारें या संगीत की किसी धुन में खो जाएं। ये छोटे छोटे चैलेंज ही तो दिमाग को जवान और दिल को जिंदा रखते हैं। रिश्ते निभाएं, अपने पुराने दोस्तों से मिलें, उनके साथ हंसे, गप्पे मारें, क्योंकि रिश्ते ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। हार्वर्ड की 85 साल लंबी स्टडी भी यही कहती है कि लंबे और खुशहाल जिंदगी का राज पैसा या शोहरत नहीं, बल्कि हमारे गहरे और मजबूत रिश्ते हैं। कनेक्ट करें तो फोन उठाइए और अपनी किसी अजीज को कॉल लगाइए। उनकी आवाज सुनकर जो खुशी मिलेगी वो अनमोल है। 3. पर्पस, जिंदगी का मकसद ढूंढे। जिंदगी में एक मकसद का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो अपने पोतों पोतियों को कहानियां सुनाना हो या किसी जरूरतमंद की मदद करना। छोटे कदम बड़ी खुशी, छोटे छोटे काम पर उनसे मिलने वाला सुकून बेमिसाल है। अनुभव बांटे, अपने तजुर्बे की किताब खोलिए। अपनी कहानियों से, अपने हुनर से आप इस समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं, चाहे वो किसी युवा को मेंटोर करना हो या अपने पड़ोस में कोई छोटी सी वर्कशॉप शुरू करना। याद रखिए, यू आर अ पावर हाउस ऑफ विजडम एंड एक्सपीरियंस। एक नई उड़ान, एक दूसरी बहार। तो याद रखिए कि 50 के बाद की जिंदगी एक अनमोल तोहफा है, एक नई उड़ान है, एक दूसरी बहार है। साइंटिफिक रिसर्च से लेकर दिलों को छू लेने वाली कहानियों तक सब एक ही इशारा करती हैं कि असली खुशी अभी आनी बाकी है। फिजिकल हेल्थ, मेंटल वेलनेस और सोशल कनेक्शंस, इन तीनों चीजों का बैलेंस ही एक खुशहाल जिंदगी की चाबी है। उठिए, जागिए और इस नए अध्याय का स्वागत एक मुस्कुराहट के साथ कीजिए, क्योंकि आप अनमोल हैं, आप खास हैं। इस सफर में आप अकेले नहीं हैं। इस पोस्ट को अपनी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट्स में हमें अपनी कहानी का हिस्सा बनाएं। बताएं कि आप अपनी दूसरी पारी को कैसे यादगार बना रहे हैं। शुक्रिया और अगले पोस्ट तक खुश रहिए, आबाद रहिए।